पिछले क्लास में हम लोग एक्सप्रेशन निकाले थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन पॉइंट लाइज at distance small r from center of dipole. Suppose AB is an electric dipole plus Q charge is situated at point A and minus Q charge is situated at point B. O is center of dipole. Point P is here, which is at distance r from center O of dipole. The line OP makes an angle theta with the direction of dipole axis. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही एक्सप्रेशन हम लोग निकाले थे पिछले क्लास में। इफ डाइपोल इज वेरी वेरी स्मॉल देन दिस एक्सप्रेशन विल बी V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर। अगर डाइपोल बहुत छोटा है, स्मॉल है, उस कंडीशन में इस एक्सप्रेशन में यह जो टर्म है एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको छोड़ दिया जाता है। इतना हम लोग कर चुके थे। अब देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे केस 1। इफ पॉइंट P लाइज along axis of dipole towards plus Q charge, then what will be the expression of potential? Case 1, if point lies along axis of dipole towards plus Q charge, then theta will be equal to 0 degree. If point P lies along axis of dipole towards plus Q charge, that means point P will be here at distance r from this center. So when point P will be here, then angle theta will be 0 degree. We put theta equal to 0 degree in this expression. तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस 0 डिग्री 1 पी वाई, यहाँ भी 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर एंड हियर V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर। तो यदि पॉइंट P जो है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के अलोंग इस प्लस क्यू चार्ज की ओर सेंटर O से R डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, तो वहां पर इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। एंड इफ डाइपोल इज वेरी वेरी स्मॉल, then value of electric potential V will be equal to 1/4 pi epsilon naught P by R square. Now, if point P lies along axis of electric dipole towards negative charge, that means towards minus Q charge, then what will be result? Suppose this point P is here. In this case, the angle between the line which joins the point and direction of dipole axis will be 180 degree. So in this expression, we will put theta equal to 180
80 डिग्री। The case 2, when point lies along axis of dipole towards minus q charge, then theta will be equal to 180 degree. So by putting the value of theta is equal to 180 degree, the expression of electric potential can be found. So in this case, V equal to 1 by 4 pi epsilon naught P cos 180 degree, R square minus L square, cos square 180 degree. The cos 180 degree is equal to minus 1. Here a square of minus 1 will be plus 1. So result will be V equal to 1 by 4 pi epsilon naught. Here will be negative sign, P by R square minus L square. And V is equal to, if dipole is very small, then L square can be neglected. minus 1 by 4 pi epsilon naught P by R square. तो आपको याद रखना है, अगर पॉइंट P इस इलेक्ट्रिक पोल डाइपोल एक्सिस से थीटा एंगल पर सेंटर से R डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हम लोग निकाल चुके। V इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर डाइपोल बहुत छोटा है तो एक्सप्रेशन वही रिटर्न हो जाएगा, V इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा बाई R स्क्वायर। अगर पॉइंट इस डाइपोल एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव क्यू चार्ज की ओर है, तब वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू सूत्र 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। If dipole is very small, then V will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught P by R square. अब यदि पॉइंट इस डाइपोल एक्सिस के अलोंग माइनस क्यू चार्ज की तरफ है, तब वही एक्सप्रेशन V बराबर सूत्र हो जाएगा माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और V इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर। अब जो केस 3 है, केस 3, if point lies on perpendicular bisector of dipole axis, then what will be value of theta? तो अगर पॉइंट P इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, तो यह जो आपका थीटा है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो जो एक्सप्रेशन में टर्म है P cos थीटा, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो गया 0। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि किसी भी चार्ज को डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो वर्क विल बी 0, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल एक्सिस विल बी 0। तो किसी भी चार्ज को इस इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस्ड करने में वर्क डन जो है वो क्या होगा 0 होगा। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी याद रखना है। अगर सिंपली पूछता है
फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जो हम लोग पिछले क्लास में निकाले हैं कि पॉइंट जो है इस एक्सिस से थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पर, वही एक्सप्रेशन निकाल देना है। अगर कंडीशन में दिया है कि पॉइंट लाइज एलोंग एक्सिस ऑफ डाइपोल, अगर ये क्लियर नहीं है कि पॉजिटिव या निगेटिव, तो कोई एक को मान करके एक्सिस के लॉ निकाल सकते हैं, इसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं। और पूछा तो यही दो जाएगा, चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर तो पोटेंशियल का मान क्या हो गया, 0। अब इसके बाद आप समझ गए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो टॉर्क कितना लगता है, वह किन किन कंडीशन में उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम में होता है। फिर उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाले। उस पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन के आधार पर हम लोग यह एक्सप्लेन किए कि वह डाइपोल जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। इसके बाद हम लोग चर्चा किए कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा। अब हम लोग का एम है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा। अब उसी को हम लोग डिटरमाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसमें 3 कंडीशन अलग अलग। पहले केस 1, व्हेन पॉइंट लाइज along एक्सिस ऑफ डाइपोल, इसी को एक्सियल पोजीशन भी कहा जाता है। फर्स्ट केस है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे जब पॉइंट इस डाइपोल एक्सिस के अलोंग कहीं भी स्थित होगी। तो सपोज AB is an electric dipole having charge plus Q and minus Q, which are situated at points A and B and separated by distance 2L. Here 2L is called length of the dipole. O is the center of dipole. P is a point along axis of dipole at distance small r from the center of dipole at which electric field intensity is to be determined. AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, A पर प्लस Q चार्ज, B पर माइनस Q चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन 12, दैट मीन्स लेंथ ऑफ डाइपोल इज 12. O is the center of dipole. P is a point along axis of dipole at distance small r from the center of dipole at which electric field intensity is to be determined. So for determination of electric field intensity due to a point charge, we have to calculate the distance of point from that point charge. In electric dipole, there are 2 point charges. One is plus Q charge, another is minus Q charge. So at first, we calculate the distance of point P from plus Q charge and distance of point P from minus Q charge. According to geometry, distance of point A from O will be L. The distance of point P from O is R. Distance of point A from O is L. Then distance of point P from A will be R minus L. Similarly, the distance of point P from O is R. The distance of point B from O is L.
then distance of point P from B will be R plus L. तो अब पॉइंट P का प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस मालूम हो गया R माइनस एल, माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस मालूम हो गया R प्लस एल। अब जब डिस्टेंस मालूम हो गया तो आप पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि किसी पॉइंट चार्ज Q से R डिस्टेंस के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान जो है, सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। अब यहां पर डायरेक्शन, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन को कैसे आप डिसाइड करेंगे? तो हम बताए हैं जब भी कहीं पर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो वहां पर किसको हम लोग एज्यूम करते हैं? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो जहां पर भी इंटेंसिटी निकालनी हो वहां पर एज्यूम कर लीजिए अपने मन में कि यहां पर कौन बैठा हुआ है? तो पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है। तो यह जो पॉजिटिव चार्ज है, यहां के पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स राइट होगा। इसको हमने मान लिया E1। E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, E1 इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q in place of R, here is R minus L, R minus L whole square. This is the value of E1. Now electric field intensity due to minus Q charge, the direction will be from P to B, because here is positive test charge, here is negative charge. This negative charge will attract this positive charge. The due to minus Q charge, the direction of electric field intensity will be from P to B. Suppose it is E2. तो यहां पर ये माइनस क्यू चार्ज है, इसके कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 का डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी फ्रॉम पॉइंट P टू B। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, expression will be E2 is equal to 1/4 pi epsilon Q by the distance of point P from minus Q charge is R plus L, R plus L whole square। तब प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया, मैग्नीट्यूड लिखे हैं यहाँ पर, माइनस Q चार्ज के कारण मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस दोनों के बीच का एंगल मालूम होना चाहिए। तो फ्रॉम दिस ज्योमेट्री इट इज क्लियर दैट द एंगल बिटवीन E1 एंड E2 थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो E1 मिल गया, E2 मिल गया, इनके बीच का एंगल थीटा मिल गया। अब कोई दिक्कत नहीं यहां पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल E इक्वल टू E1 प्लस E2, फॉर्मूला अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। तो हियर थीटा इज 180 डिग्री प्लस E2 स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो E1 स्क्वायर माइनस 2E1 E2 प्लस E2 स्क्वायर इक्वल टू E1 माइनस E2 होल स्क्वायर
equal to E1 minus E2. Now by putting the value of E1 and E2 in this expression, we can calculate the value of E. In place of E1, 1 by 4 pi epsilon naught q by r minus L whole square minus 1 by 4 pi epsilon naught q by r plus L whole square. 1 by 4 pi epsilon naught q ये कॉमन हो गया, यहाँ पर 1 by r माइनस एल होल स्क्वायर, यहाँ पर r प्लस एल होल स्क्वायर इक्वल टू q. द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस विल बी r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर. अब इसको यहाँ पर लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r माइनस यहां पर इसको आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2r, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा. तब 1 by 4 pi epsilon naught q 2rl 4r by r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर 1 by 4 pi epsilon naught q into 2l into 2r r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर. q into 2l is electric dipole moment which is represented by p. So the expression of electric field at point p E equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2 पी आर बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर. अब इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन किधर है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन E1 माइनस E2 यानी E1 के डायरेक्शन में, और E1 का डायरेक्शन किधर था A टू P. तो यहाँ एक यूनिट वेक्टर आप लगा सकते हैं RAP. तो अगर पॉइंट किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के लॉन्ग उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया इफ डाइपोल इज वेरी वेरी स्मॉल देन. अगर ऐसा कंडीशन लिखा हुआ है तो दिस एल स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड. द एक्सप्रेशन विल बी E इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught 2p आर स्क्वायर है, खत्म होगा तो r के पावर 4 और एक r कैंसिल होगा r के पावर 3. तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन है, फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया. अगर लेंथ की चर्चा है तो एक्सिस के लॉन्ग सेंटर से r डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा. अगर बहुत छोटा है तो ये होगा. और डायरेक्शन क्लियर है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इसको याद रखना है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यानी इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे. थैंक यू.